Hello and welcome to Exam Shastra. Today we will discuss about the current affairs of 3rd October. The first topic is about policy initiatives for pharma medtech sector. ঠিক আছে pharma medicine tech sector related এটো এটা article হয় যেটো press information bureau আছিলে এই নিউজটো and which is important from GS paper 3 science and technology point of view. तो देखते हैं एक्चुअली क्या है क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिया गया है फार्मा मेडिकल टेक सेक्टर में. ठीक है तो बेसिकली क्या है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने दो ऐसे इनिशिएटिव्स हाल ही में लिया है. ठीक है तो नर्चर इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है सर बेसिकली इनोवेशन ओके इनोवेशन NR&D. ঠিক আছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কোনটো সেক্টৰত ফাৰ্মাচিউটিকেল সেক্টৰৰ কাৰণে বহুত সিম্পল হয় এই দুটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে. ওকে কোনে লৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ এইটো মিনিষ্ট্ৰিৰ আণ্ডাৰতে আচলতে ফাৰ্মাচিউটিকেল সেক্টৰে কাম কৰে. নাও দিছ ইনিচিয়েটিভছ আৰ নেশ্যনেল পলিচি অন R&D এণ্ড ইনোভেশ্যন ইন ফাৰ্মা মেডটেক সেক্টৰ. বহুত ইজি হয় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ কেনেকৈ একচুৱেলি যিখন পলিচি হয় পলিচিখনৰ যদি ফুল ফৰ্ম চাবলৈ যোৱা যায় বহুত লম্বা হয় একচুৱেলি. ঠিক আছে চ' আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম নেশ্যনেল পলিচি হয় কিহৰ ৰিলেটেড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড R&D ৰিলেটেড এণ্ড ইনোভেশ্যন কোনটো সেক্টৰ ইনোভেশ্যন ফাৰ্মা মেডটেক সেক্টৰ ইনোভেশ্যন. চ' ইট ইজ নেশ্যনেল পলিচি অন R&D বুলি মনত ৰাখিলে হ'ল एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया. एंड सेकेंड कौन सा है स्कीम फॉर प्रमोशन. ये किसके लिए है प्रमोशन के लिए है क्या किस चीज़ का प्रमोशन है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन. ठीक है रिसर्च एंड इनोवेशन की प्रमोशन के लिए बेसिकली उसी इंडस्ट्री में फार्मा मेडटेक सेक्टर में जिसको बोला गया है PRIP. ठीक है फार्मा मेडटेक सेक्टर में ये रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए दूसरा पॉलिसी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने लिया है. ये दो पॉलिसी के बारे में एक एक करके देखेंगे लेकिन एक पॉइंट जो याद रखना है इट इज़ दैट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम विथ करेंट मार्केट साइज ऑफ अराउंड $50 बिलियन. दैट मीन्स $50 बिलियन इंडस्ट्री इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है. इतना बड़ा जो है ये इंडस्ट्री ये कई देशों के उनके GDP से भी ये इंडस्ट्री हमारा जो इंडस्ट्री है लाइक ये लार्ज है. ठीक है नाउ क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है पहला जो है नेशनल पॉलिसी ऑन R&D एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडिकल सेक्टर. बेसिकली R&D रिलेटेड एंड इनोवेशन रिलेटेड फार्मा मेडटेक सेक्टर এই পলিচিখন অনা গৈছে. To aims like the aims of this policy is to encourage R&D in pharmaceuticals. সিধা কথা ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে ফাৰ্মাচিউটিকেল সেক্টৰত R&D এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যাতে লাইক মোৰ এণ্ড মোৰ R&D যাতে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যাতে হয় সেই কাৰণেই এই পলিচিখন অনা গৈছে ইনক্লুডিং কোন কোন সেক্টৰত আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনে হওক বা ফাইটো ফাৰ্মাচিউটিকেল হওক. ঠিক আছে তো ইয়ে লাইক যিটো তোমাৰ ফাইটো ফাৰ্মাচিউটিকেল যিবোৰ সেক্টৰ আছে ওকে সেইটো ক্ষেত্ৰতে হওক নাইবা ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় এই গোটেইখিনি এজ এ হোল ফাৰ্মাচিউটিকেল সেক্টৰত R&D বঢ়াবৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বঢ়াবৰ কাৰণে মানুহক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলত এই পলিচিখন অনা গৈছে. এণ্ড আৰু এটা সেক্টৰৰ কাৰণে অনা গৈছে এবাউট মেডিকেল ডিভাইচেছ. চি আজিকালি বেচিকেলি কি হয় ডায়েগনচিছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত কি থাকে বেচিকেলি এই যিটো সেক্টৰ আছে মেডিচিন সেক্টৰটোত বহুত কিছুমান টেকনলজি ৰিলেটেড টেকনলজি ড্ৰিভেন ডিভাইচেছ আমি ইউজ কৰোঁ. ফৰ এক্সাম্পল ব্লাড চুগাৰৰ কাৰণে আমি টেকনলজি ইউজ কৰোঁ আমি ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ. ঠিক আছে তো ঘৰতে হৈ যায় আজিকালি ৱেইট মেচিন আছে. ঠিক আছে তেনেকৈ প্ৰেছাৰ লাইক BP চেক কৰিবৰ কাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আমি আমাৰ কি আছে বেলেগ বেলেগ মেডিকেল ডিভাইচেছ আছে যিবোৰ ঘৰতে আমি ইজিলি কৰিব পাৰোঁ. চ' মেডিকেল ডিভাইচেছৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু যাতে মেডিকেল ডিভাইচেছ যাতে লাইক বনাব পৰা যায় তাৰ ৰিলেটেডো R&D এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে এই পলিচিখন অনা গৈছে. অবজেক্টিভ কি হয় চিধা অবজেক্টিভ কি হয় টু ক্ৰিয়েট এ ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্ট ডেট ফেচিলিটেটছ ইনোভেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইন প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট. তো প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাটো ইয়াৰ উদ্দেশ্য হয়. তাৰ লগতে
टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। ठीक है, जो इनोवेशन सेक्टर है इस मामले में, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी ये जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन R&D एंड इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल मेडटेक सेक्टर, ये फोकस कर रहा है। तीसरा जो है तो बिल्ड एन एनेबलिंग इकोसिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट इनोवेशन। ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाना है जो क्या सपोर्ट करेंगे, ये जो इनोवेशन है एंड जो क्रॉस सेक्टरल रिसर्च है, अलग अलग सेक्टर में जो रिसर्च है, इसको बनाने के लिए एनवायरनमेंट या फिर इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए भी इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है प्रीप। ठीक है, PRIP, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इसके तहत एक स्कीम लाया है। बेसिकली जो है, देखिए स्कीम में क्या है, किस पे ये फोकस कर रहा है, सेम चीज है, ऑन फोस्टरिंग इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन द मेडटेक सेक्टर इनटू इनोवेशन ड्रिवन पावर हाउस। ये जो मेडटेक सेक्टर है, मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, इसको इनोवेशन ड्रिवन पावर हाउस बनाने के लिए इस स्कीम के तहत ये यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस हाई क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, हाई क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, एमिंग टू शिफ्ट द सेक्टर टुवर्ड्स वैल्यू एंड इनोवेशन बेस्ड अप्रोचेस। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या है इसका, जो एक कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए में क्या है, स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टैब्लिशिंग 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो नाइपर है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे क्या किया जाएगा, 7, ठीक है, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा कंपोनेंट ए के तहत। ठीक है, ताकि जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी बूस्ट मिले। सेकेंड जो कंपोनेंट है यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, सेकेंड कंपोनेंट में क्या है, प्रोमोटिंग रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर बाय एनकरेजिंग रिसर्च इन 6 प्रायोरिटी एरियाज। तो यहाँ पे 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कंपोनेंट ए में, कंपोनेंट बी में 6 प्रायोरिटी एरियाज लाइक न्यू केमिकल एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स इंक्लूडिंग बायोसिमिलर्स, मेडिकल डिवाइसेस, स्टीम सेल थेरापी, ऑर्फेन ड्रग्स। ठीक है, ऐसे करके कई 6 प्रायोरिटी एरियाज में क्या किया जाएगा, रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, एग्जैक्टली इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये क्या कर रहा है, इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो सिस्टम है, मेडिसिन है, जो प्लांट्स है, इसको पैटेंट करा के, ठीक है, ये पैटेंट जो है ये वो लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस ये पैटेंट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ऐसा क्या क्या इनिशिएटिव है जिससे हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन का जो सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे मेडिसिन का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है फ्रॉम पेटेंटिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए, इसके तहत मैंने यहाँ पे आज से ये जो क्वेश्चंस हम लोग जिसको भी लेंगे तो उसका एक सैंपल आंसर बना के मैं दे दूंगा। ठीक है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने दिया है। रिसेंटली क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दे हैव बीन अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग पैटेंट्स फॉर मेडिकल यूज ऑफ प्रिवेलेंट इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, जो हमारा जो मेडिसिनल प्लांट्स है इसको ये लोग क्या करते हैं, पैटेंट करा के रख देते हैं। ठीक है, मेडिकल यूज के लिए। नाउ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन क्या है, देखिए, इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा क्या है, पुराना मेडिसिन सिस्टम है। ओके, लाइक बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था तब हमारे जो उस बहुत पहले से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंडिया में चल रहा था। ठीक है, सच क्या क्या है, योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब इंडिया का दान है। नाउ अभी क्या बात है कि इंडिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर क्या रहा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है। पहली जो बात यह है कि आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष हैज बीन मेड ए सेपरेट मिनिस्ट्री, अलग से एक मिनिस्ट्री बनाया गया है फॉर ट्रेडिशनल जो हमारे मेडिसिन सिस्टम है। ठीक है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ठीक है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री को बनाया गया है।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो मैंने जो अभी बोला है नाम, उसी को आप लोग पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा। नाउ 2001 में और बढ़िया एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। कौन सा इनिशिएटिव है? इट इज अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज का डिजिटल लाइब्रेरी एक बनाया गया था, इसका एक डाटाबेस बनाया गया था इसके तहत, इन विच ट्रेडिशनल मेडिसिन इंफॉर्मेशन इज डिजिटाइज, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसको डिजिटाइज किया गया था 2001 में ही। नाउ द TKDL हैज कन्वर्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड एंशिएंट टेक्स्ट, इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है, जिस लैंग्वेज में या फिर जिस टेक्स्ट में ये मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, उसको 34 मिलियन A4 साइज की पेपर्स में, ठीक है, अलग अलग भाषा में क्या किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, जापानीज में, स्पेनिश में एंड अदर जो मेजर्ड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है उस पे क्या किया जा रहा है, लाइक ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू रिवाइव WTO टॉक्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम रेकलेस पेटेंटिंग बाय कॉर्पोरेट। तो इंडिया अभी बोल रहा है कि WTO के साथ भी इंडिया का बातचीत हो रहा है, कैसे हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है इसको प्रोटेक्ट कर पाए, जो पेटेंटिंग किया जा रहा है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, उसको पेटेंट करने के लिए भी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी WTO के साथ अभी इंडिया का बात चल रहा है। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है इट हैज साइन एंड रेटिफाइड द नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नगोया जो प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस, ये जो जेनेटिक रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल साइन किया गया था, इंडिया ने उसको रेटिफाई भी हाल ही में किया है, एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फॉर देयर यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो ABS, ठीक है। नाउ बात क्या है कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन को, जेनेटिक रिसोर्सेज को लेके जो एक्सेस है, जो दुनिया के कई सारे कंट्रीज को इक्विटेबल बेनिफिट के लिए जो वो लोग यूज कर सकते हैं, तो वो जो उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटी या फिर प्रोटोकॉल जो लाइक लिया गया था, ठीक है, उसको भी इंडिया ने हाल ही में रेटिफाई किया है। नाउ ये आंसर जो है यहाँ पे लगभग आपका क्या दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देने की बात किया जा रहा है, ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स आप लोगों को देने के लिए, उसको अच्छे से करिए, ठीक है। जैसे हो आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मान लीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर पहले कभी सवाल बने हैं तो उसको भी हम लोग इसमें लेके आएंगे, ठीक है। सो ये था पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर फार्मा मेडटेक सेक्टर। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज अबाउट UN Bonn Summit, ठीक है, UN Bonn Summit। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डेलीगेट्स एट एन UN कॉन्फ्रेंस इन बॉन, जर्मनी में, ठीक है। डेलीगेट्स ने क्या किया है, बहुत सारे डेलीगेट्स अलग अलग देशों से जो आया है, ठीक है। दे हैव एडॉप्टेड ए न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क एमिंग एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विथ केमिकल्स एंड वेस्ट। কেমিকেলছ আৰু ৱেষ্ট ৰিলেটেড যিবোৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিস্ক আছে সেইবোৰ কমাবৰ কাৰণে এটা গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এডপ্ট কৰা গৈছে। ক'ত কৰা গৈছে? বন কনফাৰেন্সত, যিটো বন সামিট ৰিসেন্টলি হৈছে, তাত সেই গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনোৱা গৈছে, এটা এডপ্ট কৰা গৈছে, বেসিক্যালি টু ৰিডিউস দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিস্ক এছ'চিয়েটেড উইথ কেমিকেলছ এণ্ড ৱেষ্ট। দিছ ফ্ৰেমৱৰ্ক ন'ন এজ দ্য গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক অন chemicals, a framework to কি বুলি কোৱা গৈছে, global framework on chemicals which includes 28 targets designed to enhance responsible management of chemicals and waste throughout their life cycle। basically আমি কি জানিব লাগে, প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা 28টা টাৰ্গেট লোৱা গৈছে, কিহৰ কাৰণে? ফৰ ৰেছপনচিবল মেনেজমেণ্ট অফ কেমিকেলছ, কেমিকেলৰ ইউজৰ ক্ষেত্ৰত, ৰেছপনচিবল মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক লোৱা গৈছে অন কেমিকেলছ, য'ত 28টা টাৰ্গেট তেওঁলোকে কি কৰিছে, ডিচাইড কৰিছে। দ্য বন ডিক্লেৰেশ্যন ইট ৱাজ এডপ্টেড এট দ্য সামিট এইমিং টু প্ৰিভেণ্ট এক্সপ'জাৰ টু হাৰ্মফুল কেমিকেলছ, phase out the most dangerous ones when appropriate and enhance the safe management of such chemicals where necessary. It also encouraged countries to support the transition to circular economies and to develop substitutes for chemical। এই কনভেনশনৰ জৰিয়তে
এই কনফাৰেন্সৰ বা সামিটৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ যিখিনি লিডাৰ্স গৈছে, তাতে যিখিনি ডেলিগেটস গৈছে বা প্ৰত্যেকখন দেশকে কি কৰিব বিচাৰিছে, বেসিক্যালি সাৰ্কুলাৰ ইকনমিৰ ফালে ধাৱবান হ'বৰ কাৰণে কি কৰিছে, লাইক এনকাৰেজ কৰিছে। তাৰ লগতে কেমিকেলছৰ সাবষ্টিটিউট ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণেও সেই ক্ষেত্ৰত এই কনফাৰেন্সত এনকাৰেজ কৰা গৈছে। ঠিক আছে, সো এনকাৰেজ কি কৰিছে, ট্ৰানজিশন টু সাৰ্কুলাৰ ইকনমি এণ্ড টু ডেভেলপ সাবষ্টিটিউটস ফৰ chemicals, and this approach aims to not only safeguard health and environment but also reduce waste and enhance recycling efforts. এইটো কেৱল আৰু কেৱল হেল্থ বা এনভাইৰনমেণ্টৰ সেফটিৰ কাৰণে বা সেফগাৰ্ডৰ কাৰণে নহয়, ওয়েষ্ট আৰু ওয়েষ্ট জেনেৰেশ্যনটো কমাবৰ কাৰণে আৰু ৰিচাইক্লিং এফৰ্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে বেসিক্যালি এই যিটো বন সামিট বা বন কনফাৰেন্স হৈছে ইয়াৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া গৈছে। ঠিক আছে, দিছ ডিক্লেৰেশ্যন also encourages countries to support the transition to circular economies and develop substitutes for harmful chemicals to safeguard health, environment and to reduce waste and promote recycling efforts, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे यही बात आता है कि एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क लिया गया है बेसिकली एनवायरमेंटल रिस्क को कम करने के लिए which are associated with chemical and waste। सेकेंड जो है दुनिया भर के कंट्रीज को सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है एंड केमिकल्स का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए भी एनकरेज किया जा रहा है। तीसरा कि यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से रिलेटेड सेफगार्ड के बारे में ही एम नहीं किया जा रहा है, उसके साथ साथ वेस्ट एज ए होल कम करने के लिए रिड्यूस द वेस्ट एंड रिसाइकलिंग एफर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA, जो कल मैं डिस्कस करने वाला था लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम के कारण कल डिस्कस करना नहीं हुआ। बेसिकली जो न्यूज़ आया था असम ट्रिब्यून में, लाइक ये जो था कि AFSPA एक्सटेंडेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ बात क्या है, देखिए AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको कब लाया गया था, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, इंडियंस के द्वारा। उसी टाइम इसके रेस्पॉन्स जैसे इन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, AFSPA को इंट्रोड्यूस ब्रिटिश ने किया था। नाउ उसके बाद हम लोग को आज़ादी मिला। आज़ादी मिलने के बाद पहले ये जो AFSPA था इसको प्रॉपरली इसको खारिज नहीं किया गया, लेकिन ऑर्डिनेंस के तरह इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में एंड फाइनली 1958 में इट वाज नोटिफाइड एज एन एक्ट। ठीक है, 1998 में इसको एक्ट की तरह घोषणा किया गया था या फिर एक्ट में इसको परिवर्तन किया गया था। The Armed Forces Special Power Act enacted in the year 1958, it grants extraordinary powers and immunity to the armed forces। ये क्या देते हैं, armed forces के लिए extraordinary powers and immunity ये provide करते हैं। बेसिकली कहाँ पे, जहाँ पे वायलेंस है, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है एंड बेसिकली उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, नागा इंसर्जेंसी से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम बैक टू बैक आ रहा था, तो इसीलिए इसको यहाँ पे अप्लाई किया गया था। मीनिंग क्या है, देखिए पहली बात तो ये है कि आर्म फोर्सेस को इतना ज़्यादा इम्यूनिटी मिल जाता है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक पावर मिल जाता है, दे कैन प्रोहिबिट ए गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन। किसी जगह में अगर मान लीजिए 5 लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे AFSPA लागू है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, पहले तो इन लोग जो फोर्स है, ठीक है, लाइक जो लाइक आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इन लोगों को प्रोहिबिट कर सकता है एंड जरूरत पड़ने से दे कैन यूज फोर्स एंड इवन ओपन फायर। ये लिखा है कि ओपन फायर भी कर सकता है अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग इस लॉ को वायलेट कर रहा है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, like if reasonable suspicion exists, the army can also arrest a person without a warrant, enter or search a premises without a warrant। किसी को, इन लोगों को अगर मान लीजिए लग गया कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है या फिर कोई सस्पिशन या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी ये कोई आदमी कर रहा है, तो उस आदमी को ये लोग विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है एंड उनके जो घर है उसको वहाँ पे बेसिकली क्या चला सकता है, ये जो करते हैं मान लीजिए कि घर को जेटा की करे तलाशी करे, ठीक है, तलाशी ये लोग चला सकता है।
ओके तीसरा जो है इट इज अबाउट एनी पर्सन एरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी मे बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन কাৰোবাক যদি এৰেষ্ট কৰিও ৰাখে তেতিয়ালে কি কৰিব লাগিব তেওঁ সোনকালে নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচনৰ যিগৰাকী অফিচাৰ ইন চাৰ্জ থাকিব তেখেতৰ হাতত গতাই দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰপাৰ ডিটেইলিং ৰিপৰ্ট দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা গৈছিল ना इसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस हैं देखिए पहली बात तो ये है कि अंडर सेक्शन 3 द जनरल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और ए स्पेसिफिक एरिया एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया नाउ सेक्शन 3 लिखा गई जे जिकोनो एखन राज्यर गवर्नरे बा एज ए सेंट्रल गवर्नमेंटे बा यूनियन टेरिटरी क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेटर एजने की करिब पारे एटा अंचलक एखन राज्यर एटा अंचलक डिस्टर्ब एरिया हिसाबे की करिब पारे डिक्लेयर करिब पारे बा गोटे राज्यखनक डिस्टर्ब एरिया हिसाबे डिक्लेयर करिब पारे ठीक আছে ডিস্টার্ব এরিয়া হৈ গল সেই এরিয়া যত রিলিজন রেস কাস্ট সেক্সৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই এটা কি হয় লাইক এটা ডিস্টার্বড সিচুয়েশন ঠিক আছে এটা ইনস্টেবিলিটিৰ সিচুয়েশন গহি তোলা হয় ঠিক আছে সেকশন 3 ৰেটো আছে সেকশন 4 ত কি আছে বেসিক্যালি ইয়াতে আছে ইট गिव्स आर्मी पावर्स टू सर्च प्रीमाइसेस एंड मेक अरेस्ट विदाउट वारंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है ठीक है सही है यहाँ तक क्लियर है नेक्स्ट जो है सेक्शन 6 इट स्टिपुलेट्स दैट अरेस्टेड पर्सन एंड द सीज प्रॉपर्टी आर मेड ओवर टू द पुलिस विथ द लीस्ट पॉसिबल डिले যদি যিজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিব সেইজনৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টিক যদি সিজ কৰে ঠিক আছে তেতিয়াহলে এখিনি কি কৰিব লাগিব পুলিচৰ ওচৰত হেণ্ডওভাৰ কৰিব লাগিব উইদাউট এনি ডিলে উইথ দ্য লিষ্ট পসিবল ডিলে বুলি কৈছে যিমান সোনকালে পাৰে তিমান সোনকালে সেকশন 7 ত কি আছে ইট অফাৰ্স প্ৰটেকশন অফ পাৰ্সনস acting in good faith in their official capacity the prosecution is permitted only after the sanction of the central government ঠিক আছে now ইয়াৰ ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰভিজন বা সেকশনস আছিল এখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট যেটো পইণ্ট আছে এটো হৈ গল ৰেশনাল বিহাইণ্ড ইম্পোজিশন অফ আপসপা কিয় লাগে আপসপা এনেকুৱা কি পইণ্টস আছে আপসপাৰ সাপোৰ্টত যে এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয় ডিস্টার্বড এৰিয়া पहली बात तो ये है कि क्या क्या पॉइंट है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस आर्म फोर्सेस आर डिप्लॉयड इन काउंटर इंसर्जेंसी टेररिस्ट ऑपरेशन व्हेन ऑल अदर फोर्सेस अवेलेबल टू द स्टेट हैव फेल्ड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल आर्म फोर्सेस ऑपरेटिंग इन सच एनवायरनमेंट रिक्वायर सर्टेन स्पेशल पावर्स एंड प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन एनेबलिंग लॉ देखो आर्म फोर्सेस को बेसिकली क्या किया जाता है जब कोई भी बाकी जो फोर्सेस है मान लीजिए कोई पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर कोई भी फोर्सेस एक स्टेट के अंदर होते हैं तो उन लोग जब फेल होते हैं टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए इंसर्जेंट को काउंटर करने के लिए तभी ये लोग इन लोगों को डिप्लॉय किया जाता है एंड उस मामले में इनको सर्टेन लाइक सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल पावर या फिर प्रोटेक्शन तो दिया जाता है इसके तहत ठीक है लाइक इन द फॉर्म ऑफ एन एनेबलिंग लॉ बेसिकली आपसपा के तहत आपसपार जिखन आईन ठीक আছে এই আইনখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক স্পেশাল পাৱাৰ দিয়া যায় ঠিক আছে বা সেই সময়ত দিবলগীয়া হয় নেশনাল সিকিউৰিটি The act plays a crucial role in maintaining law and order in the disturbed area, thus protecting sovereignty and security of the nation इसलिए भी important है तीसरा जो है boosting moral of forces APSPA boost the moral mental well-being और कथा कोआ गयसे of the armed forces for ensuring the public order in the disturbed area ठीक है बेसिकली एक डिस्टर्ब एरिया में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन लोगों को मॉरल सपोर्ट या फिर मेंटल वेलबींग इस एक्ट के तहत दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है ठीक है तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है ये इसीलिए है कि आर्ग्यूमेंट्स ठीक है इन फेवर ऑफ APSPA इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेशनल बिहाइंड इम्पोजिशन ऑफ APSPA ठीक है नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट APSPA देखिए यहाँ पे क्या होता है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है बहुत ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स का भी केसेस सामने आता है एंड अदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बेसिकली जो फोर्स रेप वगैरह भी कई सारे जगह में ऐसा एलिगेशन उनके खिलाफ उठते हैं कि किया जा रहा है इसलिए इरोम शर्मिला जी ने भी मणिपुर में बहुत साल तक इस एक्ट को मतलब वापस लेने के लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट की थी ठीक है Human rights violations in APSPA areas are not inquired into and followed by adequate action. Thus, it is against the principle of natural justice. देखिए यहाँ पे अगर कोई कुछ भी अनाप शनाप गलत हो गया तो इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी किया नहीं जा रहा है तो ये तो नेचुरल जस्टिस का जो सिस्टम है इसको वायोलेट कर रहा है प्रिंसिपल को ठीक है दूसरा जो है कि ineffectiveness of the act critics argue that this act has failed in its objectives of restoring normalcy in disturbed area although being in existence for about 50 years बोला गया कि जो इसका जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है ठीक है टू मेंटेन पीस या फिर टू रिस्टोरिंग पीस टू रिस्टोर पीस
और नॉन बेल सी इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया। अब 50 साल हो गया लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में अभी तक ये लागू है, फिर भी ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए भी क्रिटिक्स लाइक इसको बोलते हैं कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आता है वायलेशन ऑफ द राइट टू रेमेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है। ये एक संस्था है जिसको बोला जाता है अंगटॉक, ठीक है, UNTOC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। एक न्यूज़ आया था इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने ये आर्टिकल यहाँ पे डाला है। The Minister of the State for Home Affairs attended a two-day conference in Palermo, Italy, marking the 28th anniversary of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes. तो इसका 20 साल हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes, ठीक है, it is a global and legally binding instrument adopted by UN General Assembly in 2000 and enforced in 2003। बेसिकली ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर लाइक एग्रीमेंट जैसा है, ठीक है, जिसको 20 साल पहले लिया गया था। ओके, किसने लिया था इसको एडॉप्ट? यूएन जनरल असेंबली ने, UNGA ने ही इसको लिया था 2003 में, जिसको 2000 में लिया गया था, सॉरी 2003 से जिसको एनफोर्स किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी एम्ड एट कॉम्बेटिंग ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग एंड इलिसिट फायर आर्म्स ट्रैफिकिंग। चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, माइग्रेंट का स्मगलिंग हो, ठीक है, लाइक कुछ भी चीज़ों का स्मगलिंग हो या फिर इलिसिट फायर आर्म्स का ट्रैफिकिंग हो, तो इससे रिलेटेड जो भी इन सभी जो क्राइम्स है इसको ऑर्गेनाइज क्राइम्स बोला जाता है। तो इसको कॉम्बेट करने के लिए ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी दुनिया भर में लागू किया गया था 2003 में। आई एम सो सॉरी, पहले मैंने इसको ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था, ठीक है, लेकिन एक ट्रीटी या फिर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो जो लीगली बाइंडिंग है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, कभी कभार स्टेटमेंट में क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिख देगा आपको कि UNTOC इट इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, इट इज लीगली बाइंडिंग, सबको मानना पड़ेगा। करेंटली देयर आर 191 पार्टीज टू दिस कन्वेंशन इंक्लूडिंग इंडिया हु जॉइन्ड इट इन 2002 एंड रेटिफाइड इट इन 2011। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्ट्स एज ए नेशनल नोडल अथॉरिटी फ्रॉम इंडिया। मान लीजिए इसके साथ ये जो लाइक इंस्ट्रूमेंट या फिर जिसको ट्रीटी भी बोला गया है, ठीक है, UNTOC, इसके तहत हर एक कंट्री में, ठीक है, क्या क्या काम हो रहा है, इसके तहत काम हो रहा है कि नहीं, इसको कौन देखेगा? कोई नेशनल लेवल पे एक नोडल एजेंसी तो होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। तो हमारे केस में कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं CBI। तो CBI इज द नोडल एजेंसी और अथॉरिटी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया ऑल्सो एनेक्टेड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इन 2013 व्हिच स्पेसिफिकली डिफाइंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। इंडिया ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी एनेक्ट किया था 2013 में, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन करते हैं। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी, इस लाइक ट्रीटी के बारे में या फिर जो लाइक ये लिया गया था इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो UNTOC है, इट इज़ द मेन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, ये हम लोग को मालूम हो गया है। द कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम फॉर और UNTOC इज ऑल्सो नोन एज पेलेर्मो कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पे इसको डिसाइड किया गया था, यहाँ पे इसको लाइक क्या बोला जाता है, इसको लाइक लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ द कन्वेंशन entered into force in 2003 after the required number of ratification, and the idea behind having an international convention against organized crime was that if crimes could cross borders so must law enforcement। देखिए, मान लीजिए कि इसके खिलाफ, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाना इसलिए जरूरी था। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे कुछ क्राइम करके गया है इंडिया में, ठीक है, ये भाग के गया है मान लीजिए कि वेनेजुएला, तो दोनों देश के बीच में क्या होना चाहिए, एक लाइक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होना चाहिए। मान लीजिए कोई वेनेजुएला में जाके कोई एक ग्रुप या फिर माफिया वहाँ पे जाके चुप रहा है, तो इसको यहाँ से इंडिया भेजना इनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी बन जाता है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है वो जो कंट्री है जहाँ पे जाके वो छुपा हुआ है, ठीक है। सो इट एनेबल्स कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स फॉर टैकलिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, जो मैंने अभी ऑलरेडी बोला है। ऑल मेंबर्स पार्टीज टू द कन्वेंशन मस्ट टेक मेजर्स इंक्लूडिंग क्रिएटिंग डोमेस्टिक क्रिमिनल ऑफेंसेस, फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग, obstructing justice, corruption, etc. are all made offenses under the law।
इन सबको ऑफेंस की तरह माना जाता है इस लॉ के तहत। एडॉप्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर एक्स्ट्राडिशन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, प्रमोटिंग ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर अपग्रेडिंग द बिल्डिंग and building the adequate capacity of national authorities, ठीक है। The United Nations Office on Drugs and Crimes, ठीक है, UNODC is a custodian of UNTOC, ओके। सो इसके तहत तीन प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। UNTOC सप्लीमेंटेड बाय 3 प्रोटोकॉल्स, नेमली पहला जो है प्रोटोकॉल, सिर्फ नाम जानना है, प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी किस्सा है उसको PSP प्रिवेंट करना है, सप्रेस करना है एंड पनिश करना है, स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन के केस में। इसको 2003 में लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, एंड इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट विथ एन एग्रीड डेफिनेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। सेकेंड जो है प्रोटोकॉल अगेंस्ट, ये जो था प्रोटोकॉल टू PSP ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश, प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश, याद रखिएगा। दूसरा जो है प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर, ठीक है, चाहे वो लैंड रूट से हो, सी रूट से हो या फिर एयरवेज से क्यों ना हो, कोई भी माइग्रेंट को स्मगलिंग नहीं कर सकता। इसको 2004 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, इसको रोकने के लिए, माइग्रेंट जो स्मगलिंग है इसको रोकने के लिए। तीसरा जो प्रोटोकॉल है इसके तहत UNTOC के तहत ये है प्रोटोकॉल अगेंस्ट इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है। कोई भी कंट्री में कोई इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता है फायर आर्म्स का, तो इससे रिलेटेड भी प्रोटोकॉल है जो 2001 में ही अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। सो प्रोटोकॉल अगेंस्ट इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स, देयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड एम्यूनेशन, चाहे वो फायर आर्म्स हो, उसके पार्ट्स हो या फिर कंपोनेंट हो जिससे ये बनता है, किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रैफिकिंग में ये पाबंदी इसके तहत 3 प्रोटोकॉल्स में से एक के तहत लगाया गया है। पहला ट्रैफिकिंग, दूसरा स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, नाउ तीसरा या फिर माइग्रेंट्स, तीसरा जो है इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स या फिर कोई पार्ट्स एंड कंपोजिशन एंड एम्यूनेशन क्यों ना हो, ठीक है। तो दिस यहाँ पे मैंने क्या दिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। वन इज ये 2 क्वेश्चन मैंने डाला है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। कल मैं इसका आंसर भी दे दूंगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ इंस्टाग्राम में नहीं कनेक्ट किया है तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।